Welcome everyone. Today we will design a simply supported rectangular slab on the basis of yield line theory. The design a simply supported rectangular slab 5 meter into 6 meter for flexure only to carry a superimposed load of 4 kilonewton per meter square. Use M20 concrete and Fe415 steel. Assume mu equals to 0.7. Mu is the coefficient of orthotrophy, means we have to design the slab as a orthotrophically reinforced slab. So it is given that this is a simply supported slab from all edges. The all edges are simply supported, and this longer side is 6 meter and shorter side is 5 meter. For flexure only means हम सिर्फ बेंडिंग के लिए ही इसको डिज़ाइन करेंगे. And superimposed load, that is W, is given 4 kilonewton per meter square. M20 concrete यूज़ करना है and Fe415 स्टील यूज़ करना है. म्यू 0.7 यूज़ करना है. म्यू दे दिया आपको, इट मीन्स हमें इसको ऑर्थोट्रोफिकली डिज़ाइन करना है. So first of all we have to write the given data. So first is size of slab is given 5 meter into 6 meter, means longer span is 6 meter and shorter span is 5 meter. Superimposed load is 4 kilonewton per meter square, and mu, this is the coefficient of uh, orthotrophy, that is 0.7. Fy is 415, Fck is 20, and now alpha, uh, this we have to calculate for to in the calculation of collapse load. So so here we are calculating means alpha equals to it is a ratio of longer span, sorry, it is a ratio of shorter span to longer span. ठीक है, ये शॉर्टर स्पैन टू लॉन्गर स्पैन का एक रेशियो होता है जो आगे चल के हमें यूज़ करना होगा कोलैप्स लोड के कैलकुलेशन में. सो अल्फा विल बी shorter upon longer. Shorter span is 5 meter and longer span is 6 meter. So 5 by 6 it will be 0.833. Now we have to calculate the required depth. So we will use the deflection control criteria. So span to depth ratio in case of slab should be less than 35 for simply supported slab. So uh, so we can say that the depth required is 5000 upon 35. Here we have to put the shorter span. जब भी हम रेक्टेंगुलर स्लैब को डिज़ाइन कर रहे होंगे तो यहाँ हमने शॉर्टर स्पैन को पुट करना है. शॉर्टर स्पैन दैट इज़ 5 मीटर, और 5 मीटर को हमने mm में किया तो ये 5000 mm हो गया. तो यहाँ से जो डेप्थ आई है ये mm में आई है, दैट इज़ डी रिक्वायर्ड, दिस इज़ ओवरऑल डेप्थ 142 mm जो रिक्वायर्ड, हमें कम से कम 142 mm तो हमें रखनी होगी. नाउ एज्यूमिंग ओवरऑल डेप्थ, अब जो कैपिटल डी हमने प्रोवाइड की है वो 150 mm है, मीन्स जो जितना रिक्वायर्ड था हमें उससे हमने ज़्यादा एज्यूम किया है डेप्थ को. इफ़ेक्टिव कवर यहाँ पे हमने एज्यूम किया 25 mm. सो इफ़ेक्टिव डेप्थ विल बी 150 minus 25, this will be 125 mm. Now load calculation. So first we have to calculate the self weight of slab. For that we have to multiply the overall depth with the unit weight of RCC. So this will be 3.75 kilonewtons per meter square. Now assuming floor finish, फ्लोर फिनिश के लिए हम एज्यूम करते हैं स्लैब में 1 kilonewton per meter square. Now superimposed load, this is given 4 kilonewton per meter square. Now total load W will be 3.75 plus 1 plus 4. So it will be 8.75 kilonewton per meter square. So in the design of ultimate load theory, so we use ultimate loads. So ultimate load will be load factor into total load. तो लोड फैक्टर हमें पता है 1.5 होता है, तो हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया. Now it is 13.125 kilonewton per meter square. Now the
slab is designed as orthotrophically reinforced. For orthotrophically reinforced slab, the formula for ultimate moment capacity is mu equals to wu into alpha square into L square upon 24 into under root 3 plus alpha square into mu minus alpha under root mu, and this is square. यहाँ जो L हम ये पुट करेंगे ये हमें शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग पुट करनी है, मीन्स हमें L डैश को पुट करना है यहाँ पे. तो एम यू इक्वल्स टू 13.125, ये WU है. देन दिस इज L डैश 5 मीटर स्क्वायर एंड अल्फ़ा इज 0.833 स्क्वायर डिवाइड बाई 24 into under root of 3 plus mu is 0.7 and alpha is 0.833, so here is square minus alpha is 0.833 under root 0.7 और ये स्क्वायर है इसका. इसको हमने कैलकुलेट किया, यहाँ कैलकुलेट करने पे ये mu की वैल्यू आ गई अपने पास 12.98 किलो न्यूटन मीटर्स. Now we have to check whether the slab is under reinforced, over reinforced or balanced section. So we have to compare the mu and mu limiting. So now we are calculating mu limiting. अब mu limiting के लिए मैंने आपको फॉर्मूले जो प्रीवियस वीडियोस थी हमारी उसमें मैंने आपको बताया था. तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड स्लैब है और जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील है वो 20 एंड 415 है. तो इसके लिए एमयू लिमिटिंग का फॉर्मूला होगा 2.76 BD स्क्वायर. सो 2.76 B इज़ 1000 mm and effective depth is 125. So mu limiting is 43.125 kilonewton meters. Now we see that mu is less than mu limiting. जो mu आया था पीछे हमारे पास वो 12.98 था और ये जो mu limiting आया है ये 43.125 है. It means we can say that mu is less than mu limiting, hence section is under reinforced section. द अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी इन शॉर्टर डायरेक्शन. अब हमें फाइंड करना होगा अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी इन शॉर्टर डायरेक्शन एज वेल एज इन लॉन्गर डायरेक्शन. तो अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी इन शॉर्टर डायरेक्शन इसको हम लिखते हैं एम यू एक्स, एंड दिस एम यू एक्स इज इक्वल्स टू एम यू विच हैव कैलकुलेटेड अभी जो हमने जस्ट फाइंड किया था एम यू. तो एम यू और एम यू एक्स दोनों इक्वल होंगे. सो वी कैन राइट दैट एम यू एक्स इक्वल्स टू 12.98 किलो न्यूटन मीटर्स. नाउ अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी इन लॉन्गर डायरेक्शन इसको हम लिखेंगे एम यू वाई. सो एम यू वाई इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एम यू एक्स. तो म्यू हमें गिवन है 0.7, तो हमने 0.7 से मल्टीप्लाई किया एम यू एक्स को. सो एम यू वाई इक्वल्स टू 9.086 किलो न्यूटन मीटर्स. इसके बाद अब हमें एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है दोनों स्पैन के अलोंग शॉर्टर स्पैन अलोंग एज वेल एज अलोंग longer span. तो फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्टील अलोंग शॉर्टर स्पैन. तो हमें सेम वही फॉर्मूला यूज़ करना है एम यू इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी इंटू डी इंटू 1 माइनस एफ वाई ए एस टी अपॉन एफ सी के इंटू बी इंटू डी. यही फॉर्मूला हम पीछे अभी यूज़ करते आ रहे हैं. तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें सारी वैल्यूज़ को पुट करना है और हमें यहाँ से ए एस टी को फाइंड करना है ए एम यू. अब हम यहाँ कैलकुलेट करें एरिया ऑफ स्टील अलोंग शॉर्टर डायरेक्शन. तो हम जो एम यू यहाँ रखेंगे वो एम यू एक्स रखेंगे जो हमारा शॉर्टर डायरेक्शन में आया था एम यू एक्स. तो एम यू एक्स हमने रखा यहाँ पे 12.98 इंटू 10⁶ इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई. ए एस टी को एस टी रहने देंगे. इसके बाद डी. अब डी है इफेक्टिव डेप्थ दैट इज़ 125 इंटू 1 माइनस एफ वाई ए एस टी एफ सी के इज़ 20 बी एंड डी. ये सब वैल्यूज़ पुट कर दी. यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ए एस टी की. तो हम ए एस टी को फाइंड कर लेंगे. ए एस टी आ जाएगा अपने पास 300 mm स्क्वायर. Now in case of slab, the minimum steel is provided as 0.12% of cross section area.
स्लैब के केसेस में हम मिनिमम स्टील प्रोवाइड करते हैं 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन का 0.12% कैलकुलेट किया, तो ये आ गया 180 mm²। इसकी और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने कैसे फाइंड किया, हम यूनिट वेट से ले रहे हैं स्लैब की, तो 1000 mm तो इसकी लेंथ होगी, और डेप्थ जो है वो ओवरऑल डेप्थ 150 mm है। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसका जब 0.12% कैलकुलेट किया हमने, 100 से डिवाइड किया, 0.12/100 इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये आ गया 180 mm²। अब जो मिनिमम स्टील है वो हमने जो प्रोवाइड किया है 300 mm², उससे कम है, मीन्स हमने जो प्रोवाइड कर रखा है वो इससे ज़्यादा प्रोवाइड कर रखा है। इट मीन्स ओके। नाउ यूजिंग 10 mm डाया बार्स, तो हमने अब 10 mm का एक बार प्रोवाइड किया है। तो अब ये देखना है कि स्पेसिंग कितनी होगी। तो स्पेसिंग के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज़ एरिया ऑफ वन बार, ये π/4 इंटू d² लिखा है, दिस इज़ डायमीटर ऑफ बार, मल्टीप्लाई बाई 1000 दैट इज़ द यूनिट लेंथ ऑफ स्लैब अपॉन टोटल एरिया ऑफ स्टील AST। तो इससे हमें स्पेसिंग मिल गई। अब दिस इज़ 261.79 mm। Hence provide 10 mm dia bars at the rate 260 mm center to center along shoulder direction। ठीक है, तो हमें शोल्डर स्पैन के अलोंग एक 10 mm का बार यूज़ करना है, और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होनी चाहिए 260 mm। यहाँ पे अपने पास आई थी 261, लेकिन हमने यहाँ कितना एज्यूम किया है 260 mm। 260 mm मीन्स हमने और कम गैप कर दिया है, स्पेसिंग को और कम कर दिया है बार्स के बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ स्टील अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन अब फाइंड करेंगे हम। तो इसमें हमें यहाँ MU को पुट करना है, तो MU कौन सा लेंगे हम, अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन, दैट इज़ MUY। तो MUY है हमारे पास 9.086 किलोन्यूटन मीटर एंड डेप्थ इज़ 125। तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया। पुट करके हमने यहाँ से AST की वैल्यू को फाइंड किया, और AST आ गया अपने पास 210 mm²। नाउ मिनिमम स्टील के लिए हमें पता है कि इट इज़ 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो इट विल बी 180 mm², एंड दिस इज़ लेस देन प्रोवाइडेड। प्रोवाइड हमने कितना किया अभी, जो एरिया ऑफ स्टील हमने कैलकुलेट किया था 210 mm², मीन्स ये 210 mm² से कम है। इट मीन्स ओके। सो नाउ along longer direction I am using 10 mm diameter bars, so spacing required will be area of one bar multiplied by 1000 and divided by total area of steel, so this is coming 373.99 mm which is greater than 300 mm। तो 300 mm से ज़्यादा तो हम स्पेसिंग प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। hence provide 10 mm diameter bars at the rate, यहाँ पे हम इसको 220 नहीं, इसको हम 300 mm ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ये मिस्टेक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 300 mm सेंटर टू सेंटर अलोंग लॉन्गर स्पैन। So this was the design of a rectangular slab which is simply supported based on yield line theory. Thank you.